Good morning, students. Today we am back with your the most important English questions of class 12th, and these are coming to your section C. So I am back with your section C questions. So here we are going to start the questions of section C. You can see. In section C, you can see question number 6, 7, 8 and 9. So, I am here with your questions and answers of section C. Question number 6, in this you can see, so, join the following sentences using the words given in bracket. आपको यहाँ पे join करने होंगे following sentences, pair of sentences आपको given होंगे, उसमें आपको join करने होंगे. तो join करने के बाद आप क्या देखेंगे, bracket में आपको वो word given होगा which you want to join, which you have to join. So first question is, the boy needs help, his father died last year. So you have to add whose in that, you have to join with whose in this sentence. The boy whose father died last year needs help. यहाँ पे था boy जिसको जरूरत है help की, उसके फादर जो है लास्ट ईयर डाई हो गए. बॉय जिसके फादर लास्ट ईयर डाई हुए उसको जरूरत है हेल्प की. कम टू द नेक्स्ट. द मैन वॉज अ शॉपकीपर, आई हेल्प द मैन हूम. वो मैन शॉपकीपर है, मैंने उस मैन की हेल्प करी. द मैन whom I help, वो मैन जिसकी मैंने हेल्प करी है was a shopkeeper, वो एक शॉपकीपर है. Come to the next. It is important you get up early. You have to add with that. ये important है, you get up early, आप जल्दी उठे. It is important that you get up early. ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी उठे. Next is, he followed the schedule. Schedule को है follow करना है. He would have succeeded. You have to add had here. Had he followed the schedule, he would have succeeded. जो उसने schedule follow कर रहा था वो कर चुका है, उस schedule को follow कर चुका है जिससे कि वो succeed हुआ है, successful हुआ है. He asked me, I needed his help. Whether he asked me whether I needed his help. वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे उसकी help करने की जरूरत है. Next is, follow traffic rules, you will meet with an accident otherwise. Follow traffic rules, otherwise you will meet with an accident. Student, hope so you are going well in this and you will go to well in this questions. You can see these are the most important questions. He read the passage, he highlighted the important information. You have to add with as. As he read the passage, जैसे उसने passage read किया उसने highlight कर लिए important information. Next is, I like the company of a person. The person's thinking is positive. यहाँ पे आपको add करना है with whose. I like the company of the person whose thinking is positive. मुझे वो कंपनी पसंद है person की जिसकी thinking जो है positive है. He had sat down. He felt pain. Barely when add करना है आपको उसमें. He had barely sat down when he felt pain. उसने बहुत barely उसको बैठना है जब उसको pain हुआ. उसने show किया pain, उसको दिखा उसको pain. Next is, people like the book, it educates and entertains. You have to use which in that. People like the book which educates and entertains. This is the dog, he killed the cat. You have to add with that in this. So this is the dog that killed the cat. You know very well that हम use कर सकते हैं with persons, with animals, especially with animals we have to use that, and with persons we have to use who only. Come to the next. The student works hard, he has bright future.
You have to add with who. The student who works hard has a bright future. The woman was selling balloons. The police caught her. You have to add with whom here. The woman whom the police caught was selling balloons. Next is you behave with others. Your relations depend on it. You have to add with how. Your relations depend on how you behave with others. आपके relation किस पे depend है कि कैसे आप दूसरों से behave कर रहे हो. Yesterday was the day. Everything went wrong. You have to add with when here. Yesterday was the day when everything went wrong. Yesterday कल ही वो दिन था जब मेरे साथ सब चीज गलत हुई. I went everywhere. She accompanied me. You have to add by wherever. She accompanied me wherever I went. उसने accompany करी मुझे जब कहीं मुझे मैं गया. Now section C. वो सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा. कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट. इनको कंबाइन करना है हर एक सेंटेंस को, जैसे कि एक वो डायरेक्टली हो जाए और वो पूरा डिपेंड हो जाए एक पे. द बर्गलर टुक आउट अ नाइफ, हिज इंटेंशन वाज टू फ्राइटन मी. आपको इसमें इन्फिनेटिव यूज करना है. द बर्गलर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन मी. कैसे? इन्फिनेटिव में क्या आता है? व्हाट यू यूज इन इन्फिनेटिव? यू हैव टू यूज टू फॉर्म एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इन इट. तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज. द बर्गलर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन मी. आप फ्राइटन कैसा भी दे रखा हो, लेकिन टू फ्राइटन मी जब आप यूज करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हिज इंटेंशन ये चीज हट जाएगी और आप ये सेंटेंस फर्स्ट वाले से कंबाइन हो जाएगा. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट. He is poor. He is honest. Compound sentence. As we know about compound sentence के mixture होते हैं sentence. दो sentences का mix करके बनाते हैं. He is poor but he is honest. So you have to add with but. Sometimes examiner will not give you some kinds of examples like but, both, and if. You have to add it. So sometimes they give you compound sentence, complex sentence, use adjective phrase, use an apposition, use phrases, use infinitive, like that kind of sentence. So you have to know about कि किसमें क्या आता है, infinitive क्या होता है, adjective क्या होता है, phrases क्या होते हैं, apposition क्या होता है. Farmer saw a snake, it was half dead. Use adjective in this. The farmer saw a half dead snake. तो adjective क्या हो गया यहाँ पे? हाफ डेड जो है आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे. द नेक्स्ट इज योर फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प यू. दैट्स द ट्रुथ. तो मैंने आपको बोला था कंपाउंड सेंटेंस आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए, सिंपल आ जाए. तो यहाँ पे आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है. द ट्रुथ इज दैट योर फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प यू. सच क्या है कि आपका फ्रेंड जो है आपको हेल्प करता है हमेशा. लीला केम हियर, शी वांटेड टू सी हर सिस्टर. यूज इन्फिनेटिव इन दैट. लीला केम हियर टू सी हर सिस्टर. लीला यहाँ पे क्या आई? अपनी सिस्टर को देखने आई. You won't pass, you work hard. Complex sentence you have to add in that. So you won't pass unless you work hard. फर्स्ट वाला सेंटेंस दूसरे वाले पे, पहले वाले पे, सेकेंड वाला सेंटेंस फर्स्ट वाले का डिपेंड हो, उस पर बने, उससे रिलेटेड हो. The next is Nirala was brought up in Bengal. He was a great Hindi poet. Use phrase in apposition. As I told you कि phrases आ जाएगा, apposition में आ जाएगा. तो निराला, यहाँ पे 2-3 चीजें निराला के बारे में गिवन है. क्या? निराला जो है बंगाल से आया है. वो हिंदी का ग्रेट पोएट है, बहुत ग्रेट पोएट है हिंदी का निराला, कॉमा द ग्रेट हिंदी पोएट. ये उसकी क्या हो गया? एडजेक्टिव. उसके बारे में बता दिया है. जो ग्रेट हिंदी पोएट है कौन है? निराला.
वॉज ब्रॉट अप इन बंगाल, वो कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है उसको, बंगाल से लिया गया है। There will be no failure, you are dedicated. You have to add with complex sentence. There will be no failure so long as you are dedicated. There will कोई failure नहीं है ताकि वो dedicated है, so long as you are dedicated. Turn to the left, you will reach the hospital. Use participle. Participle form इसमें use करनी है आपको. तो turning to the left, you will reach the hospital. जैसे ही आप लेफ्ट टर्न करोगे, जो कि टर्निंग वाली हो गई, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है आपकी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिरेंड्स भी होते हैं आपके आईएनजी वाली फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट वाला होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, ईडी वाली फॉर्म नहीं लगती है। तो जैसे ही आप टर्न करोगे लेफ्ट में तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, ये इसका कहना है, ये इसका मानना है। सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी the most important videos, the most important question in this video. You think him to be clever, he is not so clever. Complex sentence में आपको ये change करना है. Which kind of sentence? Complex sentence. तो complex sentence में change करोगे तो he is not so clever as you think him to be. वो इतना भी clever नहीं है जितना आप सोचते हैं. He is not so clever as you think him to be. आप इसमें जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें फर्स्ट वाले को मर्ज करना है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है ताकि फर्स्ट टाइम से फर्स्ट सेंटेंस से ही उसका इंट्रो हो जाए, उसका इंट्रोडक्शन हो जाए, तो यू कैन ऐड इट इन. The ship was overtaken by the storm. It made a little progress. आपको इसमें past participle जो है ऐड करना है, बनाना है. इसमें overtaken by the storm, the ship made a little progress. जैसे ही overtake करोगे, overtaken करते टाइम storm के थ्रू शिप जो है एक little progress पर बन गई, पहुंच जाती है. राजस्थान इज लार्ज, मध्य प्रदेश इज नॉट इक्वली लार्ज. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको. राजस्थान इज लार्जर देन मध्य प्रदेश. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें क्या कर दिया, राजस्थान लार्ज है, मध्य प्रदेश इक्वली लार्ज नहीं है उसके, तो ये हो गया राजस्थान इज लार्जर देन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से ज्यादा लार्ज कौन है, राजस्थान. कम टू द नेक्स्ट. She is running fast. She wants to catch the bus. इसमें infinitive आपको यूज करना है, आप देख सकते हो. infinitive का मतलब मैंने आपको बताया था to plus first form of the verb. तो आपको ये ऐड इसमें करना होगा. She is running fast to catch the bus. वो क्यों फास्ट कर रही है, ताकि फास्ट चल रही है ताकि वो बस को कैच कर सके. He has failed. The reason is his negligence. Complex sentence है इसमें. The reason of his failure is that he is negligent. उसका फेलियर का रीजन ये है कि वो negligent हो रहा है, अवॉइड कर रहा है चीजों को. The next is with your next position ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आ गए ना तो आप इसमें देखेंगे, here you can see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ देखेंगे conjunctions given है. fill in the blanks by choosing correct conjunctions from those given in bracket. जो ब्रैकेट में आपको गिवन होंगे उससे आपको करेक्ट करना है. get me dash coffee dash tea, either or या choo. get me either coffee और tea, या तो कॉफी लाना या टी लाना. ऑब्वियसली कॉफी और चाय हम एक साथ पियेंगे नहीं, तो उसमें टू का मतलब तो दोनों एक साथ आ गया, वो हम लेंगे नहीं. तो हम क्या करेंगे, या तो कॉफी लाना या चाय लाना. द नेक्स्ट इज that he is very old, he enjoys good health, although या while. यहाँ पर आएगा although. while आपका आता है जब क्वेश्चन जो है, आपका सेंटेंस जो है कंटिन्यू फॉर्म में चलता है. जब वो कंटिन्यूएशन फॉर्म में चलता है तो यू हैव टू ऐड विद योर while. और जब आपका आगे से ही सेंटेंस में गैप है तो हालांकि आप ऐड करेंगे. although का मतलब होता है हालांकि. तो although he is very old, he enjoys good health. वो हालांकि बहुत ओल्ड है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, लेकिन तब भी वो अपनी हेल्थ को एंजॉय करके जिएगा, अच्छे से एंजॉय करा अपनी लाइफ. नरेश ऑलवेज हेल्प समीर डैश मोहित डैश. नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये आएगा, ये although गेट आएगा. नरेश ऑलवेज हेल्प्स नॉट ओनली समीर बट ऑल्सो मोहित. आपको ये दो ऑप्शन गिवन होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू कि इन दो में से कोई आप एक चूज इजीली कर सकते हो. इसमें मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स.
बहुत ईजीएस्ट वे होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, पूरी अपनी इंग्लिश यही काम करते हो। लक्ष्मीकांत किल्ड अ डॉग डैश ही वॉज ड्राइविंग हिज कार। अब वाइल आएगा या एज सून एज, देखिए लक्ष्मीकांत किल्ड अ डॉग वाइल ही वॉज ड्राइविंग, जब वो ड्राइव कर रहा था कार को तब लक्ष्मीकांत जो है उसने मार दिया एक डॉग को। नेक्स्ट इज डैश अपूर्वा डैश गौरी गोज टू स्कूल, बोथ एंड या नीदर नॉट। नीदर अपूर्वा नॉट गौरी गोज टू स्कूल। अब आप कहेंगे यहाँ पे बोथ एंड में तो आ सकता था, या तो अपूर्वा जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए, ठीक है। इसमें दोनों भी आ सकता है, हम दोनों भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते थे हम दोनों, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा आपको कहा कि इंग्लिश वर्क करती है व्हेन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आपको सिखाया गया होगा, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज प्लूरल, ठीक है। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल देन योर वर्ब इज सिंगुलर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं whenever you will get confusion in that, तो आप यहाँ देख सकते हैं गोज आ रहा है, तो गोज क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब जो है प्लूरल है, तो वर्ब जब प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सिंगुलर। सिंगुलर होने के लिए यहाँ पे बोथ एंड तो मतलब दोनों का हो गया, नीदर नॉर यानी दोनों में से कोई नहीं, तो हम यहाँ पर नीदर नॉर इजीली पुट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश रूल्स। सहवाग डज नॉट प्ले टीम dash he has been selected in the team yet or end। सहवाग does not play well, यहाँ पर well आएगा, yet he has been selected, हालांकि वो मतलब सहवाग जो है अच्छा प्ले नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी वो सेलेक्ट हुआ टीम में। The next is you should work hard dash leave the job, not only but also, either or। तो you should either work hard or leave the job, या तो हार्ड वर्क करो या फिर जॉब छोड़ दो। He wants a pair of jeans dash a pair of t-shirt as well as on but। तो इधर आपको फिल करना है he wants a pair of jeans as well as t-shirt, इसको pair of jeans भी चाहिए और t-shirt भी चाहिए। Dash he dash his friend did not go to the garden, both and or neither not। Both he and his friend did not go to the garden, दोनों उसके और उसके दोस्त जो है नेगेटिव है, गार्डन में नहीं गए, तो दोनों ही नहीं गए। नीदर नॉर अगर आप लगा दोगे तो नीदर नॉर तो होगा नहीं, क्योंकि नीदर नॉर का भी मतलब ना ही होता है, नॉट का भी मतलब ना ही होता है, तो जब नॉट ऑलरेडी मेंशन है तो आप नीदर नॉर यहाँ पे नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे तो वो आंसर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू पुट, यू हैव टू ऐड बोथ एंड। कम टू द नेक्स्ट। The box was dash heavy dash he could not lift it as or so that। The box was so heavy that he could not lift it, वो इतना heavy है कि वो उसको लिफ्ट भी नहीं कर पा रहा। Next is the bacteria are dash naked eyes dash teeny, we cannot see them with, so that or so as, whatever you add, the bacteria are so teeny that we cannot see them with naked eyes। बैक्टीरिया इतने ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको खाली आंखों से देख भी नहीं पाते, आंखों से देख नहीं पाते। अगर आप उसके आगे लेंस लगाओगे, जो भी आपके टेलीस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप ये सब होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप को देखे जाने वाले होते हैं, उनको लगाओगे तो आपको जर्म्स दिखेंगे, हमारे हैंड्स में भी दिखेंगे, हमारी बॉडी में भी दिखेंगे। तो खाली आंखों से आप कुछ देख ही नहीं सकते, नई टाइप से आप नहीं देख सकते हो। बैक्टीरिया इतने टाइनी होते हैं, इतने चीनी होते हैं, तो सो आएगा इसमें एंड दैट आएगा कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, कि हम इतना आने कि हम खाली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। I prefer English dash my mother prefers Hindi, while or as well as। I prefer English while my mother prefers Hindi। मैं प्रेफर करती हूँ इंग्लिश को, मेरी मदर प्रेफर करती है हिंदी को। मैं प्रेफर करती हूँ इंग्लिश को, जबकि मेरी मदर क्या प्रेफर करती है, हिंदी को प्रेफर करती है। नाउ द नेक्स्ट इज
it dash it has become dark. Babita could put the thread into the needle. Although he had become dark, Babita could put the thread into the needle. हालांकि जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो बबीता जो है उसको पुट कर सकती है needle में thread. He worked hard dash his health broke down. So or because he worked hard so his health broke down. वो हार्ड वर्क कर रही है ताकि उसकी हेल्थ जो है टूटे नहीं, गिरे नहीं, बिखरे नहीं. उसकी हेल्थ मतलब उसकी हेल्थ को कोई हार्म नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो उसकी हेल्थ को. The light was dash dim for her dash read the lesson. Too so that light जो है बहुत ज़्यादा dim है. Too dim for her to read the lesson. वो रीड करने लायक भी नहीं है उस लेसन को. वो क्या कर रही है लाइट बहुत ज़्यादा dim है, बहुत ज़्यादा डार्क है, वैसे भी वो लेसन रीड भी नहीं हो पा रहा है. So the next is the rainfall is declining dash the afforestation has increased. We have to add however or so. The rainfall is declining, however, the afforestation has increased. Rainfall जो है बहुत decline हो रही है क्योंकि afforestation है जिस वजह से वो increase होता जा रहा है. So students, we have completed 3 questions of section C. You can see. Now come to the question number 4. सेक्शन सी में आप देखेंगे कि इसमें क्या है. सेक्शन सी में सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं और आप उसको देख सकते हो इजीली. और हम अब यहाँ पर करेंगे 4th वाला क्वेश्चन. आप उस 4th क्वेश्चन को देख सकते हो. Fill in the blanks by choosing appropriate phrasal verb from those given in brackets. आपको यहाँ पे appropriate given words आपको दे रखे हैं तो आप इसमें पुट कर लेंगे ब्रैकेट को. यहाँ आप देख सकते हैं कोरोना एपिडेमिक डैश 3 years ago broke out या broke with. कोरोना एपिडेमिक broke out 3 years ago. वो क्या हो गया था 3 साल पहले ही हो गया था. The fireman dash the fire after 2 hours. तो put out या put up. तो the fireman put out the fire after 2 hours. 2 hours के बाद में fireman ने क्या करी, फायर को आउट कर दिया, पुट आउट कर दिया है. नेक्स्ट इज his bail application was dash by the court. टर्न ऑन या टर्न डाउन. तो इसकी बेल एप्लीकेशन जो है टर्न डाउन हो गई है, मतलब कि वो खारिज हो गई है बाय द कोर्ट. कोर्ट के द्वारा उसको हटा दिया गया है, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई, उसको हटा दिया गया है. द थीव्स डैश द हाउस लास्ट नाइट. तो ब्रोक अपॉन या ब्रोक इनटू. तो यहाँ आएगा ब्रोक इनटू. द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट. वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तोड़ मरोड़ के कोई चीज गए हैं, फोड़ फाड़ के गए हैं. द कार डैश ऑन द वे येस्टरडे. ब्रोक विद या ब्रोक डाउन. तो द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे येस्टरडे. कार जो है टूट फूट गई है, बिल्कुल खत्म सी हो गई है. कल येस्टरडे को कार जो है टूट फूट गई है. ऑन द वे ये चीज हो गई है. Next you can see the crow dash a golden ring. Carried on या carried away. The crow carried away a golden ring. crow जो है अपने साथ में कैरी करके ले गया है एक गोल्डन रिंग को. How did you dash this watch? Come by या come up to. Come by. How did you come by this watch? इस वॉच के द्वारा आप कैसे इस वॉच को आपके द्वारा ये वॉच जो है लाई गई यहाँ पे. 2 parrots were dash by 2 people. Brought in या brought up. Brought up इसका आंसर है. 2 parrots को हम brought up करके लाए by the 2 people. 2 लोगों के द्वारा वो 2 parrots जो है लाए गए, brought up हुए. Next you can see a war dash between India and Pakistan in 1965 broke out या broke away. Definitely broke out. तो एक वॉर जो है ब्रोक आउट हो गई थी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान 1965 में. वो वॉर जो है
हैपन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाउ विल ही डैश फ्रॉम द ट्री, गेट ऑफ या गेट डाउन। हाउ विल ही गेट डाउन फ्रॉम द ट्री, वो नीचे कैसे आए ट्री से। तो हम इसमें आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स इसमें यूज किए हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, मतलब एक सेंस है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं है। यू कैन सी हमने पढ़े होंगे इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन द इवनिंग, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये सब आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसमें वर्ब्स यूज होती हैं, फ्रेजेस भी यूज होते हैं। तो फ्रेजेस वो होते हैं जिसमें आपकी हम मीनिंग दे रखा होता है, which a group of words which have meaning but not a complete sense in it। तो in the morning, in the evening, ये सब आपके मीनिंग तो है लेकिन इनका क्या है, सेंस नहीं निकल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा। इन द मॉर्निंग क्या, इन द इवनिंग क्या, एट नाइट क्या, तो ये सब चीजें देखकर आपको ये लगता है। कम टू द नेक्स्ट, यू कैन सी he will dash the difficulty, get over या get on। तो he will get over the difficulty, वो difficulty से बाहर आ गया है, अब वो difficulty में नहीं है, वो परेशानी से बाहर आ गया, get over कर लिया उसने, बाहर आ गया। My wife will dash fine to attend a marriage, put up या put on। My wife will put on fine clothes to अटेंड अ मैरिज, मेरी वाइफ ने क्या करा, वो फाइन क्लोथ्स पुट ऑन करेगी, मतलब फाइन क्लोथ्स पहनेगी अपने ऊपर ताकि वो मैरिज को अटेंड कर सके, एकदम सिंपल सोबर क्लोथ्स पहनेगी। नेक्स्ट यू कैन सी अ स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, गेटिंग ऑन या गेटिंग अवे। तो स्टूडेंट शुड गेटिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, स्टूडेंट जो है वो ऑर्डर्स टीचर के और उसके टीचर के ऑर्डर से बाहर आ रहा है, गेट ऑन कर रहा है वो। हाउ आर यू डैश विद योर स्टडीज, तो कैरी आउट या कैरी अवे, ऑब्वियसली कैरी आउट। हाउ आर यू कैरी आउट विद योर स्टडीज, आप अपनी स्टडीज को किस तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने स्टडीज के साथ में चल रहे हैं, देख रहे हैं उसको कैसे कैरी कर रहे हैं। Here you can see a revised edition of the Sanjeev Passbooks. A revised edition of the Sanjeev Passbooks will be dashed very soon. Brought in या brought out? Obviously brought out. रिवाइज एडिशन जो है संजीव पासबुक का आप देखेंगे वो बहुत जल्दी से ही ब्रॉट आउट होगा, हम लेकर आएंगे और बाहर निकालेंगे उसको, क्योंकि जब तक वो बुक के अंदर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको बाहर निकालेंगे। तो ब्रॉट आउट वी यूज इन दैट, ब्रॉट इन नहीं, हम उसको लेकर नहीं आ रहे, अंदर नहीं आ रहे, उसको बाहर ला रहे हैं, इसलिए ब्रॉट आउट वी यूज वेरी सून। माई गेस्ट आर डैश इन अ ग्रैंड होटल, तो पुटिंग अप या पुटिंग आउट ऑन, putting up we use here, my guests are putting up in a grand hotel। So you can see the difference differentiate and the uses of phrasal verbs in this video. Section C we have completed in that video of class 12. It is very beneficial for you. These are the model test papers questions, important questions of that. If you want to see again video, तो आपको एक लिंक पे क्लिक करना होगा, so you can see anytime this video. Thank you students, all the very best.